campaign of Government of India? Well, it was very apt. We needed India. I mean, cannot get bigger than the nation. The whole country is after it. That is going to give us a lot of strength. We are aiming to become a superpower, and we are at that level. Thank you everyone for being here. Dinesh sir. Check this. पानी देखो बिना शक्कर का नहीं है Yes, spread out with it. Just spread out. Especially this is rainy season. The road situations are a bit tougher in rainy season. So how to drive safe? Also, where to park, how to park. Also, the right of various road users, because there will be competitive rights. There will be Better place for everyone. The flag of the women's rally from here till Churchgate, and we have some really nice vehicles out there, all waiting to be driven by the girls. These are a series of initiatives that we are doing over a 3-week period, and hopefully we'll be able to educate more and more people about this. Let me quickly introduce you to my friends over here. Starting with Anuya Maiskar. She's the director of MDRA for being here. Really appreciate it. She was there when we launched the campaign. She's here to flag it off. Really appreciate her support. Then we have Additional Commissioner of Police, Khalid Kaiser. Very quickly, I would like the guests to say a couple of words for the campaign and the support for us. And at the first, I would like to congratulate Top Gear to take such a lovely initiative, and as well as SNDT to support such a nice cause. Because I would just like to say that we are talking about safety. So being smart, taking care of everything is. Very good afternoon to all our friends from the media. It's nice to see you supporting this cause. I was here launch of Street Smart, Street Safe a couple of days ago. Week has gone by, and in this week, carpooling was encouraged, and I believe there was a great response to that. A lot of people did carpool over this week, sent in images supporting this, and I think it's a wonderful thing. I grew up going to school in a carpool, and it just means that many less cars on the road. I think it's a great initiative from the Mumbai Traffic Police and Top Gear to launch Street Smart, Street Safe. It's a great name, by the way, as well. And there are lots of other things that are coming up. Horn Not Okay Please, Traffic Angels, things like that. And I really would be keen to know how those get responded to as the days go by. And the thing that excites me the most, and I'm waiting for it to come on my system as well on the phone, is the app that is being launched, which has live Twitter updates. It's connected with Google Maps, and one gets to see traffic in real time. And it also has some very
important bits of information as to what fine it is for what offence. People don't know that. And that'll just, I think that'll clean up the system completely. And it also has, especially for us women, a very important thing. In the case of any kind of emergency, it sends emergency alerts to 3 of your contacts with your last recorded location. So I think that'll be very useful. This safety rally that we are flagging today is all spread awareness for this fantastic initiative called Street Smart, Street Safe. I'm very happy to be here, and I wish you all the best for the remaining days as well. Thank you, Mandira. The Google App Store, only for Android right now, but iOS and Windows is work in progress. Now I would like Mr. Khalid sir, please speak to the audience about this initiative. Road safety is permanent thing, is a very important thing for Mumbai Traffic Police, because we are the one who are on the road all the time. We keep on seeing a lot of issues on the road, whether it is accident, whether it is congestion, whether it is rash driving, whether it is unsafe driving, whether it is illegal parking. So the long-term solution lies in creating that awareness. For example, if you go to London or any other place, you will find vehicles parked here. It's not that there is not necessity there for people to park immediately and jump off to office or go to office. But that citizen consciousness comes. You have to park in the designated parking lots.
है टॉप गियर मैगज़ीन और मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। इन 3 हफ्तों में जहां ट्रैफिक मुश्किल है क्योंकि ये रेनी सीज़न है, मानसून है, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। पहले हफ्ते में लोगों को कारपूल करने के लिए इनकरेज, कारपूलिंग हैज़ बीन इनकरेज्ड, और वीक 2 और वीक 3 में अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स हैं जहां हमारे इंडिया में बहुत लोग बिना वजह हॉर्न बजाते हैं। तो एक प्रोग्राम है हॉर्न नॉट ओके प्लीज़। फिर ट्रैफिक एंजल्स हैं जहाँ पे वॉलंटियर्स, छोटे बच्चे पेडेस्ट्रियंस की रक्षा करेंगे, उनको दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रीट पर उनको सेफ रहना चाहिए। तो साथ में ये बहुत ही खूबसूरत एक ऐप लॉन्च हो रहा है जहां आपको लाइव फीड मिलेंगे, ट्रैफिक अपडेट्स मिलेंगे, ट्रैफिक ऑफेंसेस की सारी लिस्ट आपके पास होगी, नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा। और विमेन के लिए बहुत ये अच्छा ऐप है क्योंकि 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक मैसेज भेजा जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने लास्ट रिकॉर्डेड लोकेशन के साथ। सो लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स इस इनिशिएटिव में, इस कैंपेन में लॉन्च हो रहे हैं। और ये अच्छा टाइम है जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मानसून के टाइम पे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिचुएशन ख़राब होता है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर देम टू लॉन्च एन इनिशिएटिव लाइक दिस। आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? मैं आई थी लॉन्च के लिए। मैं भी कारपूलिंग में बिलीव करती हूँ। जब मैं चलाती हूँ तो बिना वजह मैं हॉर्न नहीं बजाती। आई मीन दीज आर थिंग्स वी ऑल हैव टू डू एज सिटीजन्स। मैं कभी रेड लाइट नहीं तोड़ती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस दैट रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। तो इस करके आई ट्राई टू बी अ गुड सिटीजन एंड आई थ्रू दिस इनिशिएटिव वी एनकरेजिंग अदर पीपल टू बी गुड सिटीजन। मंदिरा, ये तो स्ट्रीट सेफ की बात, कहीं ना कहीं वुमेन की सेफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पर इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी कहा जाता है कि महिलाएं सेफ तो अपनी तरफ से जी हाँ, अपनी तरफ से इस इनिशिएटिव के द्वारा जहाँ तक मदद हो सकती है औरतों की, अगर ये ऐप लोग डाउनलोड करेंगे, इट्स देयर फॉर वुमेन सेफ्टी। तो अपनी तरफ से हम इस कैंपेन के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। येस, दैट इज़ ट्रू। एंड बार बार न्यूज़ में अजीब अजीब इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं, बट वी ऑल हैव टू मेक अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और यही हो रहा है इस कैंपेन के द्वारा। मंदिरा, ये तो यहाँ पर जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन छोटे शहरों में तो वो ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, इंटरनेट अभी बड़े शहरों में है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ये छोटे शहरों में भी ऐसे न सिर्फ ऐसे ऐप्स यूज़ हो सकते हैं, बट देयर बी अदर प्रोग्राम्स। अभी ये बॉम्बे के लिए प्रोग्राम है, वील मूव टू अदर सिटीज़ विद दिस प्रोग्राम, मूव विद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ भी ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक में बहुत नॉन डिसिप्लिन है। तो एक एक करके we'd like this campaign to spread all over the country. थैंक यू सो मच। के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव पिछले 6 महीने पहले हम लोगों ने प्लान किया था। जब आप डेटा देखेंगे मुंबई के सड़कों पे एक्सीडेंट का, तो हर साल 550-600 लोगों का डेथ होता है, और ये अक्सर वो लोग हैं जो कि फैमिली के ब्रेड विनर्स होते हैं। और ये सारा का सारा, या इसमें ज़्यादातर जो पार्ट है ये अवॉइडेबल है, ये डेथ्स हम अवॉइड कर सकते हैं। एक काम करने वाले आदमी पे अंदाज़न 4 से 5 आदमी डिपेंडेंट होते हैं। ये बड़ा ही पैथेटिक सिचुएशन है कि रोड्स पे एक तो डेथ्स हो रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं, लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में सुधार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिटी को फंक्शन करते रहना है। इसके अलावा रोड सिर्फ मोटरिस्ट का नहीं है, रोड पे पेडेस्ट्रियन का भी राइट है, रोड पे अदर यूजर्स का भी राइट है, और इन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को सोच करके हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक ड्राइव तो जनवरी के फर्स्ट फोर्टनाइट में करते हैं, जबकि रोड सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं, और उसके तहत भी हम बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं। ये NGOs और प्राइवेट सेक्टर का जो इनिशिएटिव है, ये हमारे पास ये प्रपोज़ल आया, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि ड्राइविंग के हिसाब से सबसे जो चैलेंजिंग टाइम है वो मानसून होता है, तो ये एक ड्राइव मानसून में भी लेना चाहिए और अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करनी चाहिए। तो इसके एज अ पार्ट ऑफ दैट जो है ऐप्स बनाए गए हैं,
रोड में कंजेशन की पोजीशन के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। वुमेन सेफ्टी को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुंबई शहर में बड़ी तादाद में औरतें या तो खुद ड्राइव करती हैं या काम पे जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने इस चीज़ को कंसीव किया और अब ये जो अवेयरनेस कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि चेंज हमसे शुरू होता है। चेंज हमारे पड़ोसी से, सामने वाले से, बाजू के ड्राइवर से शुरू नहीं होता है। जब तक हम खुद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो फॉलो करेगा। दुनिया के जितने भी देश प्रोग्रेस किए हैं, आगे बढ़े हैं, उन सब में ट्रैफिक लॉज का फॉलो करना आप देखेंगे कहीं पर भी चले जाएं दुनिया में, ऑलमोस्ट 100% लोग ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं, चाहे ट्रैफिक कांस्टेबल हो या ना हो। ट्रैफिक लॉ को तोड़ना कोई होशियारी की बात, स्मार्टनेस की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है, ये हमारे इमेच्योरिटी को शो करता है। तो इस कैंपेन के माध्यम से हम लोगों ने ये भी इशू रखा है कि हमसे शुरुआत हो, हम पहले ट्रैफिक लॉज को फॉलो करें। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुंबई शहर में बड़ी तादाद में लोग बाइक्स पे ऑफिसर्स जाते हैं, काम पे जाते हैं। जब हम लोगों ने बीच में एक सर्वे किया तो हमें पता लगा कि उसमें से ज़्यादातर लोग हेलमेट नहीं यूज़ करते थे। फिर हम लोगों ने एक ड्राइव शुरू किया, अगर आपको याद हो 5, 7, 8 महीने पहले हम लोगों ने हेलमेट के लिए स्पेसिफिक ड्राइव शुरू किया, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि रोड पे बहुत सारी जो फैटेलिटीज़ हो रही हैं वो बाइकर्स की हो रही हैं। अगर आप डेटा देखेंगे, मुंबई में सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ जो है पेडेस्ट्रियन की हैं रोड पे, सेकंड नंबर पे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा या डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज कंपोनेंट उनका है जो कि ड्राइव करते हैं या पिलियन राइडर हैं, लेकिन जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, क्योंकि ब्रेन पे चोट लगने से, सर में चोट लगने से इलाज मुश्किल होता है और उसमें फर्टिलिटी के चांसेस बहुत होते हैं। तो हम लोगों ने उसको शुरू किया और हमने देखा उसका असर कि बड़ी तादाद में कन्वर्ट हो गए, जो नॉन हेलमेट वेयरिंग लोग थे वो हेलमेट वेयरिंग हो गए। तो इसमें पिछले साल हमारी फर्टिलिटी 100 से कम हुई है। अगर ये 100 से कम हो सकते हैं तो और भी 100 से कम हो सकती हैं। तो हम थोड़ा सा अगर ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना शुरू करें और हम अपने से उस चेंज की शुरुआत करें, तो मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ के ट्रैफिक को अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और इसमें फैटेलिटीज़ कम होंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे और एक जो डिसिप्लिन, शिस्त है रोड पे वो बढ़ेगी और हम दूसरे शहरों के लिए या दूसरे देशों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, तो ये एप्लीकेशन में जो है कहीं ऑप्शन भी है कि वुमेन सेफ्टी और 3 कॉन्टैक्ट्स को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर सकती है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो छोटे से शहर में कोई यूज़ नहीं करता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? छोटे शहरों के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है? देखिए, कोई दुर्घटना होने के लिए आपको सिर्फ एक बार अनलकी होना होता है। अगर आपको याद हो कि पिछले साल यहाँ पे एस्टर का एक केस हो गया, उस वक्त हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन की ज़रूरत है कि कोई वुमन इन डिस्ट्रेस है वो मैसेज करे या उस एप्लीकेशन को यूज़ करे, तो इमीडिएटली हमको ट्रेस होना चाहिए कि उनका लास्ट लोकेशन किधर है, अगर वो किसी गाड़ी पे जा रही हैं तो किधर जा रही हैं, ताकि हम पुलिस हेल्प जो है उनको इमीडिएट पहुंचा सकें और कोई ऐसी घटना होगी जो अप्रिय होगी तो हम उसको टाल सकें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। ये ऐप जो है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है कि इस ऐप के चलते 3 लोगों को पता चलता है। अगर एक आदमी ने उसको नोटिस नहीं भी किया तो दूसरा नोटिस करेगा, दूसरे ने नहीं भी किया तो तब तीसरा नोटिस करेगा। तो एक 3 लोगों को नोटिस होने से क्विक डिसेमिनेशन है। और दूसरा ये है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर अपने पुलिस कंट्रोल रूम के सिस्टम से, ताकि अगर कोई वुमन इन डिस्ट्रेस है तो इमीडिएटली हमको उसके बारे में सूचना मिले, और चूंकि इस ऐप से हमको उसको लोकेशन मिल जाएगा तो हम इमीडिएटली उस इलाके की जो मोबाइल पेट्रोलिंग है, जो बीट मार्शल है, उनको इत्तला दे सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा गाड़ी आ रहा है या ऐसा ऐसा लोकेशन जा रहा है, आप इसको चेक करो। मुंबई में नाकाबंदी लगाने में 10 मिनट लगता है, रोड पे पुलिस प्रेजेंस आपको 24 घंटे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा नाका होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस का प्रेजेंस होता ही है, कोई ना कोई पिकेट होता है। तो हमको गाड़ियों को रोकने, चेक करने और ऐसे लोगों को वक्त से मदद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और मुंबई पुलिस पिछले कई सालों से इस चीज़ के लिए फोकस्ड है कि वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। आपको मालूम है कि मुंबई आज भी देश के सेफेस्ट सिटियों में आता है और यहाँ पे जो वर्कफोर्स में वुमेन का प्रोपोर्शन है ये बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा है। और जो हम लोगों ने सर्वे किया, जो हमारे एनजीओ से कांटेक्ट होते हैं, महिलाओं के ग्रुप से कांटेक्ट होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जब हम बात करते हैं तो उनमें एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है कि मुंबई एक सेफ टाउन है। हम इस सेफ्टी को और बढ़ाना चाहते हैं और इसको एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अगर गॉड फॉरबिडन
कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि जिसमें कि उनकी सेफ्टी धोखे में आए, तो एक ऐप तो अवेलेबल है जिसमें कि इमीडिएटली वो पुलिस को कांटेक्ट कर सकती हैं, या उनका कोई नियर एंड डियर पुलिस को कांटेक्ट कर सकता है और उनको वक्त से मदद मिल सकती है। और इसके चलते मुझे लगता है कि जो हमारा सेफ्टी का रिकॉर्ड है, हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का इनिशिएटिव है ये? बेसिकली ये इनिशिएटिव इसलिए है कि सिटीजन्स आजकल ये हो गया कि गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ियों के साथ देर आर टू मेनी थिंग्स कि आपको जब मेरे को ड्राइविंग आती है शुड नॉट बी इनफ, उसके साथ जो आपको मेंटेन करना है इज़ लाइक रूल्स मेंटेन करने हैं, लॉ के साथ चलना है, कोऑपरेट करना है अपने ट्रैफिक पुलिस के साथ, कोऑपरेट करना है अपने पेडिस्ट्रियन जनता के साथ। देर आर व्हाट यू से बाइक राइडर्स, देर आर ट्रक ड्राइवर्स, देर इज़ ह्यूज BST जो कि समटाइम्स वो अपने को देखते लगता है कि अरे यार मेरी तो इतनी सी गाड़ी है, देखा नहीं होगा, इट्स पॉसिबल। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव इसलिए है कि तुम किस तरीके से अटेंटिव रहोगे। अगर तुम अपने से शुरुआत करोगे तो हर चीज़ लाइन पे आएगी। यू विल इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। So you have to start taking care of the road, the people and the car, and maintaining the car is also very important. The most important things are the brakes and all, which I always say. If you maintain the car, if you check your car regularly, and if all those things are on places, then, and if you're a safe driver, which you have to be, when you decide to drive, you have to be a safe, good driver, everything will fall in place. टॉकिंग अबाउट वुमेन सेफ्टी के, उनके लिए कितना यूजफुल होगा ये जो ऐप है, जो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन सेफ्टी, ऐसा कुछ अलग फंडा मुझे लगता नहीं है। ड्राइविंग इज एवरीबडी ड्राइव द सेम वे ना, ऐसा है कि गाड़ी में बैठी तो वुमेन का अलग स्टाइल है, ड्राइविंग का मेन का है, ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन को आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि यार वुमेन ड्राइविंग कर रही है, कुछ गलत ही कर रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन डेफिनेटली पॉइंट आउट सम मोर पीपल हु विल ड्राइव रॉन्ग, स्पेशली हु आर वेरी बैड ड्राइवर कैटेगरी, हु आर लाइक वेरी सैड विद देयर मास्टर्स एंड दे ड्राइव रियली बैड, ऐसा कुछ नहीं है। बट वुमेन सेफ्टी के हिसाब से ये ऐप जो होगा वो प्रॉब्ली इट विल बी वेरी यूजफुल बिकॉज शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ, बिकॉज वुमेन इज ऑलवेज नोन टू बी टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, यू नो, शी इज ऑलवेज बी रेडी टू एंटिसिपेट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं यूज करती हूँ। इट्स ऑलवेज अबाउट अ वुमन टेकिंग, शी इज नॉट अबाउट अ रेकलेस पर्सन who will just get inside the car and chalo. No, this is a very good thing if you are talking absolutely from a women's point of view, because she'll definitely take care of everything. For a woman is the house, the kids, everything, and this is going to help with the life and all. She'll be very taking care of.